السلام علیکم. السلام. حضرت مولانا بلال صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمایا جائے. کون ہے؟ میں اطہر حسین قادری مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں، ضلع ودیشا. کہاں سے؟ ضلع ودیشا مدھیہ پردیش سرونج. کون صاحب ہیں؟ اطہر حسین قادری. اچھا فرمائیے. کیسے ہمارا نمبر ملا آپ کو؟ آپ کو لسٹ میں دیکھا تھا، بڑے بڑے علماء کی لسٹ میں آپ کا نام تھا. مولانا بلال احمد مصباحی، میدان مسجد سلطان گنج پٹنہ. اچھا فرمائیے. اصلی میں وہ مفتی عثمان برکاتی کے خلاف فتویٰ آیا دارالعلوم غلی نواز سے کہ وہ اسے توبہ کرنا ضروری ہے، نہیں تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے، کہ اس نے الزام تراشی کیے عالموں کے اوپر، ایسا کچھ ہے. اچھا. تمام علماء کو جھوٹا قرار دیا ہے اس طرح کا. اچھا. وہ ایک اہل حدیث کا نکاح پڑھایا نا انہوں نے سنی بنا کے، کہ ظاہراً سنی بنا دیا اور ایسی اوپری باتیں کر دی کہ الزام ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو اس میں دارالعلوم غلی نواز کا فتویٰ آیا کہ یہ شخص گمراہ ہے، گمراہ گر ہے. جی تو یہ صحیح ہے فتویٰ ان کے بارے میں آیا ہے. مولانا مجاہد صاحب کا فتویٰ میں نے پورا پڑھا نہیں ہے، خالی سنا ہے کہ ان کا فتویٰ ہے. اب پڑھ لوں گا تب بتاؤں گا. آپ یہ ان کا تو معاملہ سمجھ میں آ نہیں رہا. مولانا عثمان برکاتی کا ہاں ہے وہ متہم مسکوک تو وہ ہو گئے. متہم ہے. مولانا مجاہد صاحب کا فتویٰ آیا ہے، آج ہی میں نے دیکھا ہے، پورا فتویٰ پڑھا نہیں ہے. ہاں ہاں. اب مولانا مجاہد صاحب مستند معتمد عالم دین ہے، انہوں نے لکھا ہے تو تحقیقی بات لکھی ہوگی، اتنا تو دل کہہ رہا ہے. وہ تو مفسر قرآن ہے، تفسیر بیان کرتے تھے کانپور میں آگے. جی استاد العلماء ہیں وہ، ان کی بات جیسے تیسے نہیں ہوگی. ہاں اب اس میں کیا ہے، وہ ان کی طرف سے بلال برکاتی ہے نا، یہ عثمان صاحب کا چیلا. اچھا. تو اس نے لکھا کہ یہ مولانا حسن صاحب کب جواب دیں گے کہ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب نے دوسری شادی کنوا میں دیوبندیوں کے گھر میں کی ہے، کنوا میں. خیر شریعت کے قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے کہ مفتی صاحب ہوں یا مفتی صاحب مفتی زادے ہوں یا ابو المفتی ہوں. اگر شرعی قانون سے بالا تر وہ نہیں ہو سکتے. ہاں ایسا ہوا شریعت کا قانون سب کے لیے. دوسری شادی کی نا انہوں نے دیوبندیوں میں. ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم، خدا نہ کرے ایسا ہوا ہو. اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، کوئی بھی ہو. اس میں یہی کہا کہ یہ ان پر کب فتویٰ لگائیں گے. وہ مجولیا میں دیوبندی کا نکاح پڑھا. دیکھیے مفتی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کھوج کے پورے ملک میں کون کیا کر رہا ہے اس کے خلاف فتویٰ دیا کرے. یہ ایک مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے. اس سے جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا. بلال نے کیا ایک لسٹ تیار کی ہے بہت بڑی، کافی. خیر اس کو کرنے دیجیے، یہ فتنہ ہے، شرارت ہے. ایک مفتی کی یہ ذمہ داری نہیں کہ پورے ملک میں کھوج کے مجرموں پر فتویٰ لگاتا ہے. وہ اپنے مفتی عثمان ان کے برادر ہوں گے، ان کو بچانے کے چکر میں سب. ہاں. ارے بھائی تم عثمان صاحب کو دیکھو کہ وہ دیوبندیوں کو سنی بنا رہے ہیں، تو یہ کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تم سنی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، حالات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، زبان جمع خرچہ ہے، تم دھوکہ دینے کے لیے حالات کا نام لے رہے ہو. تم کشمیری مسجد میں صلح کلیوں میں ہے، کشمیری مسجد صلح کلیوں کا معاملہ ہے، وہاں پر میں گیا ہوں. اللہ خیر فرمائے. میں بھی گیا ہوں نا، میں گیا ہوں وہاں پر کشمیری مسجد صلح کلی ہے زیادہ تر سب کمیٹی والے. اچھا وہاں بمبئی میں؟ نہیں یہ کشمیری مسجد جہاں پر ہے نا نیپال میں. اچھا یہ نیپال والی کشمیری مسجد. ہاں وہاں پر حالت کا سلام بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ حالت کے اوپر تقریر کر سکتے آپ، اس لیے یہ ایسے فتوے دے رہے ہیں مفتی عثمان برکاتی. تو یہ تو ظاہر میں حالات کا نام لے لیتے ہیں. ہاں ویسے ہاں جیسا موسم ہو مطابق اس کے میں پروانہ ہوں، مارچ میں بلبل ہوں اور جولائی میں دیوانہ ہوں والی بات. یہ ہاں بس حالت کا نام دکھانے کو لے لیا ہم. حالت ہاں جہاں جس نام کو لینے سے کام بنے وہاں اس کا نام لے لیا. دل میں کچھ اور ہی ہے. ارے اللہ تعالیٰ اسی کیفیت سے بچائے. ارے بھائی کلیئر کہہ دو کہ ہم تو دیوبندیوں میں رہیں گے، دیوبندی ہیں، سیدھے سیدھے کہہ دو تاکہ دھوکہ نہ کھائے ہم. جب دیوبندیوں کی اتنی حمایت کر رہا ہو تو کہہ دو کہ ہم تو تھانوی صاحب کو مانتے ہیں اور دیوبند والوں کو مسلمان مانتے ہیں آج سے، تاکہ علماء اہل سنت تم سے دور ہو جائے، ایک دم الگ ہو جائے علماء بریلی. کتنوں کا دور ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی یا تو کلیئر کر دو کہ ہم دیوبند والے ہیں، یا کلیئر کرو کہ ہم کٹر بریلوی والے ہیں. یہ دو رخی پالیسی کیسی ہے؟ خیر یہ اس کا اپنا نجی معاملہ ہے. ہمارے معتمد عالم دین نے کوئی شرعی حکم بیان کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھیں. ہاں مفتی مجاز دونوں بات نہ ہے، ایاکم و ایاہم. ہاں
हाँ कि गुमराहों से, गुमराहगरों से तुम खुद भी दूर रहो, न उनसे सटो न उनको अपने से सटने दो। हाँ, ये उसने लिस्ट बनाई है कि उलमाए जाहिदीन ने जब जैश मोहम्मद साहब के ऊपर फतवा लगाया कि जो उनके जनाजे में शरीक होगा ईमान से खारिज होगा, तो उसमें शरीक क्यों हुए थे मौलाना हसन साहब आप। और एक और बात आई, जैसे कि जामिया अज़हर मिस्र में जो मुहद्दिस कबीर के बेटे पढ़े अबू यूसुफ अजहरी, इन्होंने किसके पीछे नमाजें पढ़ी हैं 3 साल, वो क्लियर करें। जब मुफ्ती उस्मान बरकाती के ऊपर इतला कर रहे हैं तो जामिया अज़हर मिस्र वाला को का बारे में बताएं, इमाम का नाम बताएं, इनके बेटे मुहद्दिस कबीर के बेटे के किसके पीछे पढ़ के आए, या नहीं पढ़ के आए तो वो भी क्लियर करे कि नहीं पढ़ी नमाज। क्यों क्या जरूरत पड़ेगी वो क्लियर करे? आप उसके हाकिम हैं, मालिक हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात है। अब जितने हाजी जाते हैं सब आके क्लियर करें, पेपर में छपवाएं कि हम नमाज नहीं पढ़े हैं अभी के पीछे। हाँ हाँ सही बात है। हाँ, वो तो उसने एक भड़ास निकालने के लिए अपनी एक लिस्ट तैयार की है बिलाल बरकाती ने। कितना कर रहा है? मतलब वो है कि मुफ्ती उस्मान साहब की पूरी हिमायत कर रहा है कि मुफ्ती उस्मान साहब ने बहुत बड़ा काम किया है नेपाल में, सुन्नियत का काम किया है, ये किया वो किया, दारुल इफ्ता कायम किया, क्या क्या कायम किया वहाँ पर। बहरहाल वो ये बात कहना ये कि साहब अबू यूसुफ अजहरी ने कहाँ नमाज पढ़ी मुहद्दिस कबीर के बेटे ने जामिया अज़हर में, ये कौन सी बात हुई भाई? फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, जितने भी अजहरी पढ़ के आ रहे हैं सबके सब मशहूर हो जाएंगे। हजरत क्या जामिया अज़हर में सब पहले खड़े हो जाते हैं क्या? ये भी बात आ गई कि जामिया अज़हर में सब पहले खड़े हो जाते हैं, हय्या अलस्सलाह से पहले। वो अंगूठा भी नहीं चूमते, जुमे की अज़ान वो अंदर देते हैं, वो सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंद वालों को, बरेली वालों को, जामिया अज़हर वाले। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कैफियत है। तो इसका जवाब दे देना चाहिए मुहद्दिस कबीर दयाल मुस्तफा साहब को कि मेरे बेटे ने किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। अब हर किसी का जवाब देना भी मुनासिब नहीं होता, सबकी हैसियत ऐसी नहीं होती कि बड़े उलमा उसका जवाब देते नहीं हैं। जरूरी है ना, जब इतना ये सवाल कर रहा है बिलाल बरकाती, जवाब देना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर लोग मशकूक हो जाएंगे कि ये खामोश क्यों है जामिया अज़हर के बारे में। या तो क्लियर कर दे कि पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अरे को भाई मुहद्दिस कबीर के साहबजादी वहाँ पढ़े, और भी दुनिया का आदमी पढ़ता है वहाँ। हाँ, वो उन सब के ऊपर आ रही है बात, यानी जितने पढ़ने जा रहे हैं कि ये यहाँ आके तो हदीस पढ़ते हैं, ला तो अकेलू ला तो जालिसूम ला तो शारिबू ला तो आने को। वहाँ जितने असातिज़ा हैं सब वहाबी देवबंदी सब बदअकीदा गुमराह हैं। हाँ, ज्यादातर उनका माहौल वही है, देवबंद नदवे वाले। ज्यादातर का लफ्ज आ रहा है ना। हाँ, वहाँ तो सरकार तारीख शरीयत ने भी पढ़ा है। अब पढ़ा कोई नहीं भी पढ़ा, फतवा तो सब पे ही लगेगा, ये थोड़ी के कोई बड़ा पढ़ ले तो नहीं लगेगा। तो नहीं, हमारा ये कहना है कि हर साहब उलमाए काउंसिल में बैठ गए बम्बई में, उन पर फतवा लगा दिया मुहद्दिस कबीर ने कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी। ये उलमाए काउंसिल में कारी रही जो मुफस्सिर कुरान इस्माइल हबीब मस्जिद में हजरत मौलाना कारी रही। हाँ, तो उन्होंने बात ऐसी की नहीं, उन्होंने तो खाली बैठक की थी ना उलमाए काउंसिल में थोड़ी देर। नहीं, बैठक नहीं, उनकी वो बात जो थी कि कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा। तो हजरत वो सही तो कहा उन्होंने, ये थोड़ी मतलब ये मतलब था उनका कि कब्र में ये सवाल नहीं होगा तेरा मसलक कौन सा है, हनफी है, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये मतलब मुराद था उनका। वो मसलक आला हजरत के बारे में कहना चाह रहे थे कि कब्र में मसलक आला का सवाल नहीं होगा। पहला सवाल तो आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत यही तो है कि सरकार को पहचानो। नहीं तो कब्र में थोड़ी सवाल होगा मसलक आला के बारे में। कब्र में तो के बारे में सवाल होगा। तो 105 साल पहले इंतकाल हुआ है ना, तो 1300 साल 14 साल वालों से क्या सवाल हो रहे थे? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं। आला हजरत के वालिद से कौन सा सवाल हुआ था कब्र में, उनके दादा से, परदादा से? ये मतलब था कारी रहीउद्दीन साहब का, कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा, कब्र में ये सवाल होगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और अल्लाह के रसूल के बारे में पूछा जाएगा कि इनके बारे में क्या कहते हो। तो ये मतलब था हजरत कारी रहीउद्दीन साहब का कहने का, ये नहीं था कि वो तीन सवाल जो है उसका इनकार कर रहा है। 3 ही तो सवाल होंगे, 4 सवाल थोड़ी होंगे। सवाल तो 3 का ही लिखा है कि 3 ही सवाल होंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहते हो। ये मतलब था कि देखिए ऐसा है, जो बात गलत है गलत की हिमायत करने वाला भी गलती पर है। बैठने पर फतवा लगा दिया मुहद्दिस कबीर ने
तो ये जाने पर भी फतवा लगा अपने बेटे के ऊपर कि मेरा बेटा गया था, ये तजदीद ईमान करे, निकाह करे। तो ये बात कौन कह रहा है, आप कह रहे हैं या वो? अरे वो बिलाल बरकाती ने बहुत सी लिस्ट आप देख रहे हैं ना, लिख दी है उसने कि इन्होंने। लाहौर वाला फितरों में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं देखना चाहिए। आदमी अपने मौलाना बिलाल बरकाती ने तो ये तक लिखा कि बिलाल बरकाती कौन मारे, मतलब हिंदुस्तान के बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े मोहतरम आदमी साहब के की बात पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अब मुफ्ती फितनों का दौर है। अब मुफ्ती उस्मान बरकाती है तो काबिल आलिम, लेकिन अब क्या करें। काबिल तो शैतान भी है, इब्लीस से बड़ा काबिल कोई है? हाँ ये तो काबिलियत नहीं ना, काबिल इतना है, काबिलियत के साथ दीनदारी भी हो, परहेजगारी भी हो। ने कात्या की बोली है कि शैतान को बहुत इल्म था, ये तो देवबंद वाले ने लिखा है ना, मुफ्ती खलील साहब ने। इसमें इससे किसी को इनकार है? अरे तो हमारा तो यकीदा है कि तमाम उलूम अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। और हम कह रहे हैं कि इस जमाने के जितने वो अल्लामा का मालूम तकुन तालम, ए हबीब जो आप नहीं जानते थे मैंने। हाँ ये सब पता है, मुझे भी मालूम है। हम ये कहना चाहते हैं शैतान के बारे में, जमाने के जितने गुमराह किस्म के आलिम कहे जाने वाले लोग हैं, उनके मुकाबले में शैतान की नॉलेज तो ज्यादा है। शैतान की तारीफ तो मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप इल्म की तारीफ कर रहे हैं शैतान की। अरे हम तारीफ नहीं कर रहे हैं भाई। अच्छा वही तो बराहीन कातिया में मुफ्ती खलील साहब ने की। आप सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। हाँ फरमाइए फरमाइए। कह रहा हूँ ये कि शैतान के पास नॉलेज है कि नहीं? अरे तो इतनी नॉलेज थोड़ी जो आपने कह दिया कि सबसे ज्यादा इल्म उसको है। हम सबसे ज्यादा गलत हमने कहा? अभी हमने तो ये कहा कि जमाने के जितने गुमराह मौलवी हैं उनके मुकाबले में शैतान की नॉलेज ज्यादा है कि नहीं? अब थोड़ी इल्म है, उसका खत्म हो गया, इल्म सलब हो गया। कैसे सलब हो गया? जब वो फरिश्तों का सरदार था, जब तक उसका इल्म था, अब तो खत्म। अब उसके पास इल्म नहीं, अब वो जाहिल है। अब अल्लाह ने उसका मर्तबा छीन लिया ना, अब कहाँ से इल्म? मर्तबा तो छीन लिया, मर्तबा तो थानवी का भी नहीं है, अब कहाँ का भी नहीं है, मगर ये लोग दुनियावी एतबार से सनत याफ्ता मौलवी थे कि नहीं? शैतान क्लास लगाए तो हम भी पढ़ने चले जाए, कहीं पढ़ाता है शैतान? है शैतान कहीं पढ़ाता हो तो हम भी पढ़ लें, थोड़ा बहुत जाके देख लें उसका। ये जो देवबंद में नदवा में पढ़ाने वाले कौन है? अरे ये वो शैतान थोड़ी है साहब, वो तो शैतान वो जिनके बारे में कहना ये है कि कोई जरूरी नदवा वाले देवबंद वाले क्या जन्नत काफिर अहले इल्म हो सकता है कि नहीं? क्या ये जन्नत से उतारे गए? वो तो जन्नत से भगाया गया है शैतान। ये इनको कहा काफिर जो है, जितने गुमराह मुर्तद लोग हैं वो सब इल्म वाले हैं कि नहीं? अरे साहब इल्म वाले, अब फाजिल बरेलवी भी तो इल्म वाले थे, आला हजरत। हाँ तो वो उनके इल्म के साथ साथ दीन भी था, इनके इल्म के साथ दीन नहीं है ना। कोई कह दे कि फाजिल भाई इल्म वाले थे, आलिम थे, तो कोई कह के शैतान को भी बहुत इल्म था। ये तो फिर अरे भाई आप मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि शैतान के पास इल्म है, जितने वहाबी देवबंदी है सबके पास इल्म है, मगर दीन नहीं है। दीन भी है, नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, तो आखिरी नबी मानते हैं। और अशरफिया मुबारकपुर में देवबंद के आलिम आए थे, जब ही तो आए थे कि उन्हें मुसलमान मानते थे। मुफ्ती बद्र आलम ने इजाजत दी थी वहाँ आने की, अशरफिया में हकीमुद्दीन कासमी साहब। अब देखिए ऐसा है, मैं इन खबरों में नहीं पढ़ता, मैं इस तरह की बातों में नहीं पढ़ता। बद्र आलम ने कब तजदीद ईमान निकाह किया? सैयद सरावा इलाहाबाद में गए, पीर अब्बू मियाँ के मदरसे में, बाद में भोले। उन्हीं से पूछिए, हमको उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। फतवे क्यों लगाते हैं दूसरों के ऊपर? मैं कहा किसी पर फतवा लगाता हूँ? बद्र आलम शीर ख्वार बच्चे क्यों बन गए कि मुझे मालूम नहीं था? अभी आप उन्हीं से पूछे ना भाई, उन्हीं से पूछे ना, किसी की और बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब आपने कहा कि हुक्म तो सब पर लगेगा, मतलब कोई बचेगा नहीं। अरे तो ये जो गलत है गलत है। नहीं तो बद्र आलम जब सैयद सरावा गए, बद्र आलम के हम जिम्मेदार हैं, उनसे हम पूछने जाएं। अब आप बताओ, जो देवबंद वालों के पीछे नमाज पढ़ा, क्या हुक्म है उस पर? किसने पढ़ा? बद्र आलम साहब ने पढ़ी, सैयद सरावा। किसने भी पढ़ा? गलत है, जो गलत है गलत है। बद्र आलम कोई मासूम है? तो क्या मतलब तजदीद ईमान करना होगा कि नहीं? निकाह तजदीद अभी जाके उनसे पूछिए, हम सबके जिम्मेदार ठेकेदार थोड़ी है। पढ़ लेता आदमी तो उस पर तजदीद ईमान का हुक्म लगा। अरे आपको इसमें इस तरह की बातों में बहुत लुत्फ आता है, मेरे पास वक्त नहीं, मैं मदरसे में पढ़ाने वाला आदमी हूँ। रुकू सजदे वाली नमाजें पढ़ के आए बद्र आलम साहब, निजामुद्दीन साहब, इन पर क्या हुक्म लगेगा? सैयद सरावा में गए, कहाँ पढ़ के आए? मुफ्ती मुतीर रहमान साहब गए, वो नमाजें पढ़ के आए वहाँ पर। आपके पास इसका प्रूफ है, सबूत है? मेरे पास 7 दिन मुफ्ती जीशान मिसबाई जो बहुत बड़े मुहक्किक के वहीं पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा 7 दिन मुफ्ती मुतीर रहमान साहब रह के गए। और बद्र आलम साहब कई बार आए, निजामुद्दीन साहब 2 बार गए। तो इन्होंने इतनी नमाजें पढ़ी, आज तक इन्होंने कहा कि हम तजदीद ईमान निकाह बेद कर रहे हैं और वो नमाजें दोहरा रहे हैं जो सैयद सरावा पढ़ी।
खाली ये कहने से जान छूट जाएगी कि अब हमें मालूम नहीं था, अब मालूम। अरे अब तो मालूम हो गया, अब नमाज़ें दोहराओ, ऐलान करो। जब पब्लिक पर तुम फतवा लगाते हो जनाजा पढ़ने पर, तजदीद ईमान निकाह बैत का, तो अब तुम्हारे ऊपर हमसे गुफ्तगू करके आपको क्या मिलेगा? खामखा हमसे गुफ्तगू करके आप बात अभी बहा कह रहे रहे हैं कि मुफ्ती उस्मान बरकाती ऐसा वैसा, तो जब अरे कोई भी हो, उस्मान बरकाती हो चाहे कोई भी हो, शरीय कानून से कोई बाला तर नहीं है। जिसने गलती की है अल्लाह उसको तौबा की तौफीक अता फरमाए बस।